براہ راست آپ کو لے چلتے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت پشاور میں خطاب کر رہے ہیں۔ اب بڑی معزز مشائخ، میں پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ یہاں تشریف لائے اور میں نے آپ کی تقریریں بھی سنی، تو میں سب سے پہلے آپ کو اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ واضح کر دوں، تھوڑا اس طرف ہو جاؤ، اور آپ بھی نیچے ہو جاؤ، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں کوئی اسلام کا کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی اپنے آپ کو اسکالر نہیں سمجھتا اسلام کا، لیکن میں جس طرح کل بھی میں نے یہ بات کی کہ میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے، اور میں نے بڑا مغربی کلچر اندر سے دیکھا، اور اپنا تو میں جانتا تھا، ہم بڑے ہوئے ایک ایسے گھر میں جدھر شروع سے ہی ہمیں بڑی تربیت دی گئی اسلام کی۔ تو لیکن مجھے جو فرق ہے باقی لوگوں سے، میں جو مغربی کلچر ہے وہ میں شاید ہی کوئی اتنا بہتر سمجھتا ہوں جو میرے سے زیادہ۔ تو میرا جو زندگی کا سفر وہ اس طرح ہوا کہ میں جب دونوں کلچر کا موازنہ کیا تو آہستہ آہستہ میں اس نتیجے پہ آتا گیا کہ وہ جو مغربی معاشرہ ہمارے سے آگے نکلا ہے اور ہم پیچھے رہ گئے، میں آہستہ آہستہ اس نتیجے پہ آ گیا کہ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ہمارا جو رب ہے وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے، مسلمانوں کا خدا نہیں ہے، انسانوں کا خدا ہے۔ اور ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ اللہ چاہتا تو وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، لیکن وہ سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعہ پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو، تو وہ ہماری بہتری کے لیے اللہ کہتا ہے۔ یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ میں اپنے زندگی کے تجربے سے ان چیزوں پہ پہنچا، ان نتیجوں پہ پہنچا کہ جب اللہ حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ہمیں کیا، کیونکہ ہمارے سے پیار کرتا ہے، اللہ وہ اپنی مخلوق سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ ہمیں وہ راستہ دکھا رہا ہے جو راستہ انسان کے عروج کا ہے۔ کیونکہ دنیا کی تاریخ میں نہ کوئی وہ انسان اس عروج پہ پہنچ سکتا ہے، نہ کبھی پہنچے گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں بن سکتا۔ کسی ایک انگریزی کتاب ہے کہ دنیا کے جو 100 سب سے عظیم لوگ، انگریزی کی کتاب ہے، ولیم ہارٹ نے رکھی ہوئی ہے، انگریز نے لکھی ہوئی ہے، اس میں وہ کتاب 100 انسانوں کی بات کرتا ہے کہ جو دنیا کے سب سے عظیم انسان تھے، اس میں جو وہ سب سے نمبر 1 رکھتا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ کسی انسان نے اتنی زندگی میں اچیومنٹ کی نہیں، کسی انسان نے وہ دنیا کے اندر اس کو وہ عروج ملا ہی نہیں، وہ کام کیے ہی نہیں جو ایک انسان نے کیے۔ میں جب یونیورسٹی میں تھا، ہم کتابیں پڑھتے تھے
کہ جی وہ فلانا آدمی بڑا کامیاب ہے. میں کرکٹ کی بھی کتاب میں جو اچھا کھلاڑی تھا اس کے اوپر پڑھتا تھا. کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ ہم ان سے سیکھنا چاہتے تھے, ہمارے رول ماڈل تھے. آج ہمارے بچے بل گیٹس کا پڑھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے کامیاب ٹیکنالوجی کا آدمی ہے, کہ وہ کیسے پہنچا. اسٹیو جابز, یہ بڑے لوگ جو کامیاب ہیں, لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں. تو جو آج انسان سب سے دنیا کی تاریخ کا عظیم آدمی تھا, تو اللہ ہمیں حکم کر رہا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, کیونکہ اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو ان کے راستے پہ چلو. اللہ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا کوئی, اللہ بے نیاز ہے. یہ ہماری بہتری کے لیے وہ کہتا ہے. تو میرا یہ سب سے پہلا یہ نتیجے پہ میں کیسے پہنچا, کیونکہ جب میں نے دونوں معاشرے دیکھے, آپ حیران ہوں گے کہ جو مدینہ کی ریاست کے اصول بنائے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ حیران ہوں گے کہ وہ ان اصولوں پہ وہ مغربی معاشرے چل رہے ہیں. جو انہوں نے مدینہ کی ریاست پہ ایک ان انسانوں کو جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, ان کو دنیا کی امامت کروا دی, اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. ایک کتاب ہے بڑی تاریخی کتاب, اس کو کہتے ہیں دا فال آف دا رومن ایمپائر. ایک بڑا ہسٹورین گبنز اس نے لکھی ہوئی ہے. اس میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ کیسے وہ رومن ایمپائر جو اتنا بڑا سلطنت تھی, سپر پاور تھی, وہ کیسے گری. اس میں پورا چیپٹر ہے کہ ایک انسان اٹھا عرب سے, اور دیکھتے دیکھتے اس نے گھٹنے ٹیک دیے اس کے سامنے. تو اس نے کیا کیا, جو چیزیں کی نا وہ تھی مدینہ کی ریاست. بنیاد رکھی. بنیاد کس چیز پہ رکھی؟ سب سے پہلی بنیاد رکھی عدل اور انصاف پہ. یہ جو آپ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ جس معاشرے کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں, جدھر انصاف نہیں, وہ جانوروں کا معاشرہ ہے. جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا. اللہ نے جتنے اپنے پیغمبر بھجوائے دنیا میں 1,40,000, وہ سارے ایک ہی پیغام دینے آئے تھے کہ جانوروں سے مختلف انسان کی معاشرے میں انصاف ہونا چاہیے. اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون, قانون سے اوپر کوئی نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں, یہ سب سے بڑی بنیاد رکھی جاتی ہے ایک انسانی معاشرے پہ. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے پاس ایک قریش, اس نے کہا جی قریش کی لڑکی نے چوری کی ہے, اس کو معاف کر دیں, قریش کی لڑکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میری اگر بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی, کہ کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہوئیں, جدھر ایک چھوٹا چور چوری کرتا تھا وہ جیل میں چلا جاتا تھا, لیکن طاقتور کو اس ملک کا انصاف کا نظام نہیں سزا دے سکتا تھا, قوم تباہ ہو جاتی ہے. یعنی کہ جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے. جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا, لیکن نا انصافی اور ظلم کا نہیں چل سکتا, ظلم کا نظام. آج اگر آپ نے دیکھنا ہے عدل اور انصاف, میں آپ کو ملک بتا دیتا ہوں. سوئٹزرلینڈ چلے جائیں, سب سے خوشحال ملک ہے, وسائل ہیں ہی نہیں. پاکستان میں اللہ نے اتنی نعمتیں بخشی ہیں وسائل کی حیثیت سے, لیکن سوئٹزرلینڈ میں تو ہے ہی کچھ نہیں. وہاں خوشحالی دیکھیں جا کے. اور ایک انڈیکس ہوتا ہے کہ ایک ملک میں, اسے کہتے ہیں رول آف لا انڈیکس, یعنی انصاف کتنا زیادہ ہے کس ملک میں. آپ حیران ہوں گے کہ مسلمان ملکوں میں 20% بھی نہیں ہے انصاف, رول آف لا. سوئٹزرلینڈ میں تقریباً 100% ہے, کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے. انصاف اور خوشحالی, ظلم کا نظام اور تباہی, یہ میرے نبی نے تب کہہ دیا تھا. دوسری چیز, فلاحی ریاست. مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی گئی تھی. ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی.
रियासत ने पूरे बेवों, माजूरों को, यतीमों को, गरीबों को पेंशन्स, मुसलमान के ज़माने में, हज़रत उमर के ज़माने में पेंशन्स आई थी, पहली दफ़ा बूढ़ों को भी जिम्मेदारी ली, इंसानी माशरा था। आज अगर आपने ये देखना है फलाई रियासत किधर है, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, बरतानिया, आप वहाँ जाके देखें कि कैसे इंसानों की कदर है। मैं आपको दावा करता हूँ कि वो अपने जानवरों का हमारे इंसानों से बेहतर ध्यान रखते हैं। आप वहाँ एक पुलिस वाले को 3 साल सजा दे दी कि वो पुलिस के कुत्ते के ऊपर, वो अपने कुत्ते को किसी ने देख लिया कि उसको मार रहा था, पुलिस वाले को सजा दे दी। या पुलिस वाले इंसानों के साथ क्या करते हैं, अभी वो शहबाज गिल के साथ क्या हुआ है, 2 दिन पकड़ के उसको मारा, नंगा करके उसको तशद्दुद किया। वहां इंसानों को, इंसानियत का तो निसाम और है, वो जानवरों को, उनकी एक है RSPCA, वो देखती है कि कई जानवरों पे तो नहीं जुल्म हो रहा। और ये किधर शुरू हुआ था, हजरत उमर ने क्या कहा था कि अगर कुत्ता भी मेरी रियासत के अंदर भूखा मरे मैं जिम्मेदार हूं। बस मैं जरा चाहता हूं कि मेरी आप आज बात सुन लें, क्योंकि मैं फिर आखिर में आने लगा हूं ये हकीकी आज़ादी के ऊपर। देखें, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलेगा माशरा, वो ऊपर चला जाएगा, चाहे वो मुसलमान है या नहीं है, क्योंकि वो रहमतुल्लिल आलमीन है। और जब हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और उनके असूलों पे नहीं चलते, तो फिर हमारे सामने तो उन्होंने कहा है कि कौमें तबाह हो जाती है। आज अब देखें, मैं जिंदगी के 20-30 साल मगरब में गुजारे, वहां तस्वर भी नहीं कोई कर सकता कि एक मुल्क का मुजरिम पकड़ा जाए कि लंदन के अंदर बड़े बड़े महलात लिए हुए और एक रसीद नहीं है कि किधर से पैसा आया। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, बच्चे उसके लंदन बैठे हैं, अरबों रुपए के घरों में रहते हैं, कहते जी हम पाकिस्तानी शहरी नहीं, इसलिए हम बताते नहीं हमारे पास पैसा किधर से आया। वो अदालत, सुप्रीम कोर्ट उसको कन्विक्ट करती है, मफरूर झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागता है, और वो आज पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। वहां बैठ के अभी ये जो ऑडियो लीक्स आई हैं, ये जो इंकशाफ आपके सामने हुए हैं, इनके अंदर पता चलेगा कि वो सारे एक मफरूर, एक करप्ट आदमी, एक झूठा आदमी, एक अरबों रुपए इस मुल्क के चोरी करके बड़े बड़े महलत में बाहर रहने वाला आदमी, वो मुल्क के फैसले कर रहा है। ये मगरिब में तस्वर भी नहीं है। और उसका जो मुंशी इसहाक डार, वो जो आया है, यहां पहुंचा है, सोचे कि इसको नैब ने बुलाया, पूछा कि तुम्हारी प्रॉपर्टीज किधर से आई हैं, बजाय जवाब देने के लिए प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मफरूर हो जाता है। नून लीग के जमाने में वो आज पाकिस्तान आ गया है और फाइनेंस मिनिस्टर बन रहा है। यानी अब पाकिस्तान का पैसा, फाइनेंस किसके हवाले कर रहे हैं? जो मफरूर 5 साल से भागा हुआ था कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वो अभी तक यही नहीं पता कि 5 साल किस चीज का इलाज हो रहा था इसका। कोई ऐसी बीमारी अभी तक पता ही नहीं है जिसको 5 साल लग रहे थे, वो बीमारी नहीं थी, डरा हुआ था, और तब अब डील करके यहां पहुंचा है, और अब आके पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। 22 करोड़ कौम की, यानी आपके खजाने के ऊपर बैठेगा। बिल्ले को बिठाओगे दूध की हिफाजत करने के लिए। ये किसी मगरबी माशरे में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां इंसाफ है। और मैं जब ये चीजें आपके सामने रखता हूं, और ये जो अभी आपने फजल रहमान की बात की, ये इस गवर्नमेंट का हिस्सा है जिधर ये जुल्म हो रहा है।
सारे 60% जो कैबिनेट बैठी है, 60% कैबिनेट जमानत पे है, करप्शन के केसेस की जमानत पे है। ये किस मगरबी माशरे में होगा? इसलिए वो हमारे से आगे हैं कि वो उनके जो अहकामात मेरे नबी ने हमारे लिए, मुसलमानों के माशरे के लिए जो हमें कहा था कि ये आपके लिए लाजमी है, वो उधर चल रहे हैं। इंसानियत वहां पे कर देते हैं तो फिर अल्लाह आप पे छोड़ देता है, और कौमें वो उठती हैं जो फिर अपने पैर पे खड़ी होती है, फिर कुर्बानियां देती है, मिल के कौम कुर्बानी देती है, वो फिर निकल जाती है। जो हुआ कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आया था मदीना के अंदर। दुनिया में इतना बड़ा इनकलाब नहीं आया। 10 साल 622 और 632 में दुनिया का नक्शा बदल गया, दुनिया बदल गई। 2 सुपर पावर्स थी तब भी। हमें भी जब तक हम एक बाहैसियत कौम एक सही माने में अपने आप को आज़ाद नहीं करते, जो हमारा कलमा हमें आज़ादी देता है, और जब तक हम ये चोरों की गुलामी करेंगे जो बाहर से कंट्रोल्ड हैं, कोई मुस्तकबिल नहीं है मुल्क का। इन्होंने जो 5 महीने के अंदर कहा जी हम महंगाई कम करने आएंगे, 50 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है आज पाकिस्तान में। 50 साल के बाद ऐसी महंगाई है। कभी ऐसे माइशत जो 6% के ऊपर तरक्की कर रही थी 6 महीने पहले, आज वो बिल्कुल नीचे गिर चुकी है। बेरोजगारी बढ़ रही है। ये आपकी खिदमत करने नहीं आए थे, ये अपने केसेस ख़त्म करने आए थे। इन्होंने जो चोरी की हुई है उसको बचाने आए थे। ये इसहाक डार जैसा फ्रॉड, ये अब इसी NRO डील के तहत यह पाकिस्तान पहुंचा है। और हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा ना इंसाफ का निज़ाम इसको रोक सका, और ना हमारे वो लोग जो मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं बनते हैं, ना उन्होंने इसका रास्ता रोका। और कौन रोकेगा? इंशाअल्लाह आपका भाई इमरान खान इंशाअल्लाह इसका रास्ता रोकेगा। इमरान खान पेशावर में उलमा मशाइख कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि मगरबी मुआशरा हमसे आगे निकल गया और हम पीछे रह गए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखने का हुक्म दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना के जो उसूल बनाए उन पर मगरबी मुआशरा अमल कर रहा है। उन्होंने कुछ मिसालें दी। कहा कि फलाई रियासतों की मिसालें देखनी है तो डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और बरतानिया को देखें। इसके अलावा इसहाक डार का जिक्र किया। कहा कि 5 साल से मफरूज शख्स के हाथ पाकिस्तान का खजाना किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिफ्ता इस्माइल का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। बतौर वज़ीर ख़जाना काम करना मेरे लिए बाइसे इफ्तिखार था, मिफ्ता इस्माइल की जानिब से ऐसा कहा गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया है और वज़ीर आज़म ने मिफ्ता इस्माइल का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। बतौर वज़ीर ख़जाना काम करना मेरे लिए बाइसे इफ्तिखार था, मिफ्ता इस्माइल का गुफ्तगू करते हुए कहना था। इस्तीफ़ा पेश करते हुए उन्होंने ऐसी बात कही। आपको बताएं कि इसहाक डार वतन वापस आ चुके हैं। आज वो बतौर सेनेटर हल्फ उठाएंगे और उन्हीं के सुपुर्द अब वज़ारत ख़जाना की जा रही है। ये अहम फैसले लंदन में हुए। लंदन में इससे पहले मिफ्ता इस्माइल अपना इस्तीफ़ा पेश कर चुके हैं कायदे पार्टी नवाज शरीफ को, और अब बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा पेश किया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिफ्ता इस्माइल का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। इस्तीफ़ा देते हुए मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि बतौर वज़ीर ख़जाना काम करना उनके लिए बाइसे इफ्तिखार था। तहरीक इंसाफ का इसहाक डार के हल्फ के मौके पर एहतजाज का फैसला। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स इसहाक डार के हल्फ पर चेयरमैन डाइस का घेराव करेंगे। तो अब से कुछ देर बाद इसहाक डार हल्फ उठाने जा रहे हैं बतौर सेनेटर और तहरीक इंसाफ ने इस पर अपनी स्ट्रेटजी वाज़ेह कर दी है। तहरीक इंसाफ की जानिब से इसहाक डार के हल्फ के मौके पर एहतजाज करने का फैसला किया गया है। ये सामने आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स इसहाक डार के हल्फ के दौरान चेयरमैन डाइस का घेराव करेंगे। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। वकार सईद हमारे साथ मौजूद है। वकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो नामजद वजीर खजाना है इसहाक डार, वो अब से कुछ देर बाद जो सेनेट का इजलास 4 बजे शुरू होने वाला है, उसमें जैसे ही इजलास का आगाज होगा तो सबसे पहले वो अपने जो बतौर सेनेटर जो 2018 में वो मुंतखब उसका हल्फ लेंगे। इस
ضمن में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास हुआ है, जिसकी सदारत जो है वो अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम ने की, जिसमें इस बात का फैसला किया गया कि इसहाक डार जब हल्फ उठाएंगे तो पीटीआई की सेनेटर्स की जानिब से जो है वो शदीद एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया जाएगा। और इस जमीन में जिस वक्त वो हल्फ ले रहे होंगे जो चेयरमैन डाइस है उसका चुनाव किया जाएगा, नारेबाजी जो है वो की जाएगी। और इसके अलावा आज जो इजलास में दीगर जो एजेंडाज हैं उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये फैसला किया कि वो हुकूमत को जो है वो टफ टाइम देंगे और तमाम जो ये अमल किया जा रहा है जिसपे यानी इसहाक डार को जो वो वतन आए और उसके बाद अचानक ही जो है वो आज जो वो ठीक है, यानी भरपूर एहतजाज का प्लान है। बहुत शुक्रिया वक़ार, आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुश्किल वक्त में सियासत और पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज किया जाए। जल्द से जुलूसों के बजाय दुखी इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, 1600 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। सूबाई हुकूमतें मुतासरीन की मदद के लिए भरपूर काम कर रही हैं। पाक फ़ौज भी इमदादी सरगर्मियों में शाना बशाना मसरूफ़ है। वो दादू में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। 1600 से ज़्यादा लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, जिनमें सैकड़ों बच्चे और बच्चियां हैं। सिंध में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा, उसके बाद बलूचिस्तान में और फिर दर्जा बदर्जा बाकी सूबों में। तो अंदाज़ा है कि 30 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। सूबाई हुकूमतें भरपूर काम कर रही हैं, अफवाज पाकिस्तान भरपूर अपना किरदार अदा कर रही है। मुझे यहाँ पर नेवी के जवान मिले हैं, मुझे अब हमारे आर्मी के जवान मिले हैं, अफसर मिले हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं। सियासत से हमें परहेज़ करना चाहिए और सियासी जो है अपना गेम में नंबर स्कोरिंग उससे परहेज़ करना चाहिए कि इसको कौम को इसको एक मरहम चाहिए, कौम को इसको हेल्पिंग हैंड चाहिए, कौम को इसको जो दुखी लोग हैं उनके सरों पर दस्ते शफ़क़त चाहिए, ना कि हम जलचों जुलूसों में सियासत करें।